میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب تشریف رکھیں، فوراً بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ کیمروں والے بھی بیٹھ جائیں جی، آپ بھی تشریف رکھیں، سیکیورٹی کے دوست، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں۔ آپ سب، آپ سے عرض کیا تھا بیٹھنے کا، اور یہ موبائل بھی اگر آپ نیچے کر لیں گے تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا نیچے کر لیں صرف موبائل کو۔ درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ آج اس خوبصورت محفل پاک میں ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی اور دیگر دینی اور روحانی شخصیات بھی جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ استقبال رمضان المبارک کے تعلق سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میری بڑی آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ ظاہر مسجد کا بہت احترام ہے، یہ دوست جو ٹھیک کرا رہے ہیں نا سب کو، یہ کبھی چھوڑ دینا سارا کام، اطمینان سے بیٹھے جی، ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، پیار سے بیٹھے سارے، آپ سب اطمینان سے بس اپنی اپنی جگہ، کوئی کسی کو اگر درست کرنا بھی چھوڑ دیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کا احترام زیادہ ہے، پیر مولوی تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، آپ اگر تھوڑا خاموشی اختیار کریں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ اللہ کریم آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے اس ماحول کو دیکھ کر بہت سارے دوستوں کا یہ والا شکوہ تو مجھ سے اٹھ جانا چاہیے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ کیوں حاضر نہیں ہو پاتا۔ اب دوستوں کو جب ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی، جس طرح لوگ آزمائش میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت میں۔ ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آپ اطمینان سے مسجد کے بہت زیادہ احترام کو، اللہ کے گھر کے بہت زیادہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور ویڈیو اتنی ضروری تھی تو مجھے بتاتے، میں صرف ویڈیو بھیجتا، میرا تو خیال تھا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بہترین برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات مجھ سے ہو جائے جو درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح بھی کرے اور مجھے معاف بھی فرمائے۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہے، آپ لوگ محبت سے خاموشی سے اگر سماعت فرمائیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے بیٹھنے میں اور آزمائش میں ہے، لیکن بہرحال آپ جب جتنی محبت سے بیٹھیں گے اس کا زیادہ اجر ملے گا آپ کو۔ تو رمضان شریف کے تعلق سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میں یہاں آیا تو یہاں میرے لیے خیر کے جملے کہے گئے، اچھے لفظوں سے میرا استقبال کیا گیا، تو ظاہر ہے جو یہاں دوست بات کر رہے تھے وہ معتبر آدمی تھے، اچھے آدمی ہوں گے، تو آپ یقیناً یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے مولانا نے جس کے لیے اعلان جمعے میں کیا ہے اور کتنے سارے لوگ جس کو سننے کے لیے آئے ہیں شاید بڑا آدمی ہو۔ کوئی کسی کے لیے جب استقبالیہ کہتا ہے، اچھے جملے کہتا ہے، تو اس بندے کا اپنا قد اتنا بڑا ہوتا ہے، لوگ آنے والی شخصیت کو بھی اسی میں تولتے ہیں۔ جناب ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی کی بات سننی ہے، وہ ہمارے فلاں بزرگ نے فرمایا کہ فلاں کی بات سننی ہے، اس سے بہت اچھے، بہت گہرے، بہت مؤثر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک نقیب محفل اٹھ کر اعلان کریں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں، وہ مائک لے لے کے میں دعوت دیتا ہوں فلاں آدمی کو، اس کا اور گہرا اور عمدہ اور زیادہ اثر ہوگا۔ مثال دی ہے، بات سمجھ میں آ جائے۔ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ، اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے۔
اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی، لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اوقات وہی ہیں نماز کے، لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا، اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا۔ وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو، جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے۔ اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے، اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں، کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مزاج کو بخوبی جانتے تھے۔ حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت ہے، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے۔ اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے، پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے، اور رمضان میں ان کی پوری توجہات، اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پہ ہو جائے، آمین تو کہہ دے۔ ایسا نہ ہو جب تک آپ انتظام مکمل کریں تب تک ہم چھٹی لے لیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، آپ زیادہ غور کریں، ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے آپ کا، اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، شروع میں کہہ چکا ہوں، آپ سے اللہ رسول کی بات کرنے آیا ہوں۔ آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے، طبیعت عمل کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، تو آپ غور کریں بات پر، چھوڑ دیں باقی چیزوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، آمین تو کہہ دے۔ ہماری طرف دیکھیں پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت۔ جو استاد ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا پڑھنے پڑھانے والے، وہ کہتے ہیں بچے کو میری طرف دیکھ، چاہے علی بات آسا بھی پڑھا رہا ہوں نا تو پورا دیکھے گا تو سبق کا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، جزائے خیر۔ اور ویسے بھی ہماری محفل میں ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جس نے مجمع میں بھی لازمی بیٹھنا ہوتا ہے، سارے انتظام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو بندوبست کرنا ہے تو آپ ادھر تشریف لے جائیں جہاں بندوبست ہو رہا ہے، اب یہاں بھی تشریف فرمائیں، وہاں بھی تشریف فرمائیں، تو روحانیت سے ہی کام چلائیں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برکتیں عطا کرے، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی سب برکات ہمیں نصیب کرے۔ تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں تو چاہتا ہوں کہ سارا کام محفل کو درست کرنے میں ہی نہ لگ جائے، کچھ بات بھی ہو جائے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، عبادات کون کون سی ہم نے زیادہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ دار کا سارا وقت ہی عبادت میں ہے۔ اسے کہا گیا ہے کہ روزہ تیرے لیے ڈھال ہے۔ روزہ رکھنا بھی ہے، رکھنے کے بھی فضائل ہیں،
महबूब फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते। नहीं, आप खाना ही खा रहे हैं लेकिन खाना खाते खाते आप पर रहमत हो रही है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हमारा और दीगर मज़ाहब वालों का फ़र्क यह है कि हम सहरी खाते हैं और वो बगैर सहरी खाए रोज़ा रखते हैं। नहीं, सहरी खाना, इसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना दर्जा अता फरमाया। अब आपने रोज़ा रख लिया, रोज़ा ढाल है, इसको रखना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। थोड़ा सा अपने आप को रमजान मुबारक में बदलना है, रूटीन का काम नहीं करना। आपने रोजा रखा है, अब आपको उस रोजे का मुहाफिज बनना है। उसके लिए क्या करेंगे? अपने आप पर जरा पाबंदी लगाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ खवातीन हाजिर हुई थी कि हम रोजेदार हैं, तो फरमाया तुमने तो गीबत की है, मुर्दा भाई का गोश्त खाया, कहाँ रहा तुम्हारा रोजा? जब तक कोई झगड़ा ना करे, जब तक कोई गीबत ना करे, उतनी देर तक तो उसका रोजा ढाल है। लेकिन अगर कोई ये काम करता है तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि वो अपने रोजे की बरक़ात को ज़ाया करता है। रोजे के मुहाफिज बने। अगर कोई शख्स ऐसी बात भी करता है तो उसे कहीं भाई मैं रोजादार हूँ, उस रोजे के मुहाफिज बने। फिर रमजान मुबारक के अंदर कुरान मजीद के साथ रमजान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, जो हिस्सा मैंने पढ़ा, उसमें भी फरमाया अल्लाह ताला ने शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। हमारा ना कुरान मजीद के साथ रिश्ता आखिर किस तरह का होना चाहिए? अल्लाह का फजल है, रमजान के अंदर आपको बहुत हुफाज मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है किसी जगह कि कोई शख्स ये कहे कि हमें कुरान मजीद सुनना था तरावी में, लेकिन हमें हाफिज नहीं मिला। ये हो सकता है किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले, ये मुमकिन है सुनाने का मौका ना मिले, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि ऐसा कोई शख्स नहीं। उफाज बड़े हैं, कुर्रा बड़े बड़े आला है, कुरान मजीद के आलिम, तर्जुमा करने वाले, तफसीर बयान करने वाले, समझाने वाले बड़ी तादाद रखते हैं। लेकिन हमें जरूरत किन लोगों की है? हमें जरूरत है कुरान मजीद के उस्ताद की, जो इश्क करे कुरान मजीद से। रुके भेजते हो ना नात खानों को, बहुत अच्छी बात, फुला नात सुनाए, बहुत आला बात। एक आध रुका कभी भेजा करो ना, आज बड़ा दिल कर रहा है सूरह रहमान सुनाए। एक आध रुका रवाना करो ना स्टेज की जानिब। कभी जब कारी साहब तिलावत कर रहे हो तो उन्हें कहा बहुत दिल कर रहा है आज आप ना हमारे सामने सूरतुल हुजरात की तिलावत करें। ये रुके भी तो होने चाहिए ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ये फलाना शख्स है नमाज में सूरह इखलास बहुत कसरत से पढ़ते हैं। तो महबूब ने बुला के पीछा, आपको और सूरतें नहीं आती? उन्होंने कहा हुजूर आती हैं, पर सूरह इखलास में अल्लाह की शानों का बयान है, मुझे प्यारी बड़ी लगती। तो करीम ने फरमाया तुम इससे मोहब्बत करते हो, उम्मीद है जन्नत में भी तुम्हें साथ ले जाएगा। किसी एक सूरत से भी तो प्यार करे ना भाई। वो जो सूरह मुल्क पढ़ते थे और फिर कब्र से भी उनके सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज ही आ रही, तो ये वाला प्यार भी तो करे ना आप कुरान मजीद के साथ। दिलचस्पियां हो, ज़ौक़ हो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी शख्स ने पूरा कुरान मजीद ना भी समझा हो, अगर वो सिर्फ सूरह असर को समझ ले, इंतहाई जामे, इंतहाई मुख्तसर, और दीन का पूरा मफहूम सूरह असर में बयान हुआ, अगर वो सिर्फ सूरह असर समझ ले तो उसने दीन के सारे मफहूम को समझ लिया। और सहाबा का इतना मजबूत मिजाज था इन बातों पर कि जब वो किसी से मुलाकात करते, अस्सलामु अलैकुम होती, तो उतनी देर तक जुदा नहीं होते थे जब तक सूरह असर की तिलावत नहीं कर लेते थे। हमें कुरान मजीद से इश्क करना चाहिए। कह रहे होते हैं हमारे नकीब साहब भी और नात खान साहब भी, सारा कुरान मजीद ही हुजूर की तारीफ है, सारा कुरान पाक की नबी करीम की नात है। तो भाई अगर सारा कुरान मजीद हुजूर की नात है तो चंद आयात पढ़ दें आप, फिर मेहरबानी करें, फिर आप सुना दें। सुना फिर भी आप अशार ही रहे हैं, और वो भी ऐसे लोगों के जिनका पता ही नहीं है कि उनको शेर कहना भी आता है कि नहीं। कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत कुरान मजीद पढ़ते थे। तो हजरत उमर उन्हें बुला के फरमाया करते थे, अबू मूसा जरा मुझे मेरे रब की याद तो दिलाना। तो वो इशारा समझ जाते और फौरन कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते। कुरान पाक से प्यार करें। ये रमजान का कुरान से खास रिश्ता है। मुझे नहीं पता आप बड़े शहर में रहते हैं, मेरा तो एक छोटे से इलाके से ताल्लुक है। हम जब छोटे होते थे तो घरों में बहन भाइयों की, हत्ता के बड़ों की भी दौड़ लगी होती थी। कुरान मजीद सारा सारा दिन तिलावत होती थी और एक दूसरे से पूछे कितने सिपारे हुए, मैं नहीं बताऊंगा, तू पहले बता तेरे कितने हुए। और अगर वो पूछने को आ जाते थे, देखने को आ जाते थे कौन सा पारा पढ़ रहे हैं, तो छुपाया जाता था। लेकिन क्या करूं मैं किस दर्द से ये बात करूं।
अब मोबाइल सिर्फ जवान बेटा ही ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, उसका बाप भी बहुत इस्तेमाल करता। अब टेलीफोन पर सिर्फ बच्चे नहीं लगे हुए, उनकी अम्मा भी बहुत इस्तेमाल कर रही। वो इश्क जो आपका कुरान मजीद से होना चाहिए थे, जो ज़ौक़ कुरान पाक से होना चाहिए थे, पलट पलट कर कुरान मजीद की आयात को पढ़ना चाहिए। आपने जिस कदर चीजें अपने मोबाइल से ली हैं, याद की हैं, ज़हनों में बिठाई हैं, काश आप एक एक दो दो आयात हम सारे याद करनी शुरू कर दें, इस्लाह देते, कहां तक बात पहुंच जाती। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद का दौर फरमाते थे हजरत जिब्रील अमीन के साथ। यानी पूरा कुरान मजीद महबूब हजरत जिब्रील अमीन को सुनाते और वो नबी करीम को सुनाते हैं। और फरमाती है जिस साल हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ है उस साल 2 मरतबा सरकार ने कुरान मजीद सुनाया, और 2 बार सुना है। चले ये ज़ौक़ तो पैदा करें, कुरान मजीद से अपनी दिलचस्पी पैदा करें। 2 पारे तो कुरान मजीद के रोज़ हमें पढ़ने चाहिए। वादा नहीं ले रहा, इरादा करा रहा हूँ। एक पारा मस्जिद में पढ़े सुबह। मेरी अपील है कि रमज़ान शरीफ में मोबाइल कम इस्तेमाल करें। आपके खबरें सुनने से और तबसरे सुनने से मुल्क में कोई इनकलाब भी नहीं आया, वो पहले आया। तबसरे होने से कुछ नहीं आया तो क्या नतीजा है? कुछ भी नहीं। मेरी खबरें सुनता हूँ, आप 1 महीना खबरें भी रहने दें। आपके जो ताल्लुक की बात है, कोई मजबूरी आप देखें, बाकी छोड़ दें। वक्त कुरान मजीद को दें। ये समझ करके हमारे रसूल पाक का तरीका है, करीम महबूब का तरीका है। कुरान मजीद को रमज़ान में ख़ास वक्त दें। एक पारा मस्जिद में पढ़े, मस्जिद का हक है। एक घर में पढ़े, घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। और तरावी का आप इरादा तो करें कि मैंने इंशाअल्लाह एक ही मस्जिद में शुरू करनी है और पूरी 20 रकत पढ़नी है और उसी मस्जिद में पूरा कुरान मजीद सुनना। सिर्फ एक काम कीजिएगा, बीच में छुट्टी ना कीजिएगा, वरना अपने आप से पूछ ले, जिस दिन छोटे होते स्कूल से छुट्टी करते थे, अगले दिन भी छुट्टी करने को दिल करता था। और रूटीन में चलते रहते थे तो काम रूटीन में पढ़ोगे, हर रोज पढ़ोगे और खड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 1-2 दिन में इंसान की नफ्सियात है, 1-2 दिन में रूटीन बन जाती। आप एक दिन उठे सुबह 5 बजे, थोड़ा मुश्किल होगी आपको, बार बार मोबाइल बजेगा। दूसरे दिन भी शायद थोड़ी मुश्किल हो, तीसरे दिन मोबाइल बजे बगैर आंख खुलेगी, रूटीन बन जाती है आदमी। आप पाबंदी से कुरान मजीद सुने रमजान शरीफ में, तरावी में, कुछ भी नहीं होगा। बहुत गर्मी होती है, बहुत मुश्किल होती है। और खुदा के बंदो, जो कौम कई घंटे इमिग्रेशन की लाइनों में लगी रहती है, जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के दफातर में खड़ी रहती है, वो कुरान मजीद के लिए खड़ा हो के तो देखे अल्लाह की रहमत कितनी नाजिल होती है। वो कोशिश करे तो सही। हाँ, कोई शरी उज़र है, किसी को कोई ऐसी तकलीफ है, बीमारी है, मामला अलग, कुरान मजीद से अपना ज़ौक़ पैदा करें। हमारे एक उस्ताद साहब थे, पीर सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के वो खलीफा थे और हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। तो मैंने उनको देखा कि वो जब बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, उस हालत में भी वो बहुत अरसा उन्होंने खुद कुरान मजीद सुनाया, तो हाफिज के पीछे कुर्सी पे बैठते थे। बहुत बुढ़ापा था, ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोरी थी, पर जो कुरान मजीद से उनका प्यार था वो बड़ा अनोखा था। कुरान मजीद से मोहब्बत पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपका जो बच्चा बड़ा छोटा है ना, 2-2.5 साल का है, बच्ची बड़ी छोटी है, आप कुरान मजीद लेके घर में बैठ जाएं, इंशाअल्लाह वो भी पारा लेके आपके करीब आके बैठ जाएंगे। आप ये करें, आप देखें इनकलाब आता है। तीसरा काम जो हमने रमज़ान शरीफ में करना है वो है एक दूसरे का ख्याल रखने का काम। रमज़ान गमखारी का महीना है। अपने अखराजात कम करें, अपने इर्द गिर्द ख्याल करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर तो हमेशा ही बांटा करते थे, पर रमज़ान में जो नबी पाक की सखावत होती थी, हुजूर इस तरह बांटते कि दोनों हाथों से तकसीम फरमाते। रमज़ानुल मुबारक में सखावत का मिजाज बदले। हमारे यहाँ भी सखावत होती है, आपका नहीं मुझे पता। वैसे हमारे यहाँ आइमा मसाजिद को जो जोड़ा दिया जाता है ना सूट सीने के लिए, वो 27वीं रमज़ान को बात दो। आप क्या कब देते हैं? वो 27वीं को इसलिए देते हैं कि दर्जी कोई पकड़ता नहीं ना, फिर सी के नहीं देगा, बगैर सिला देते हैं 27 को, ताकि कहीं इमाम सिलवा ना ले और पहन ही ना ले। अब कौन दर्जी पकड़ेगा? आपने कहीं राशन देना है या किसी को तोहफा देना है तो वो आप रमज़ान से पहले दें, और उलमा से तस्दीक करा लेना। रमज़ान की नीयत करके रमज़ान से पहले भी दे दोगे तो रमज़ान जितना ही अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह के बंदे कबल वक़्त किसी को दे और मेहरबानी करें।
लोगों को लाइनों में लगाने का शौक निकाल दें तबीयत से। जब रब ने हमें दिया था तो लाइनों में खड़ा करके नहीं दिया था। ये क्यों शौक पैदा हो गया? पता है मोमिन की इज्जत कितनी है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की इज्जत अल्लाह की बारगाह में बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। तिरमिज़ी में हदीस। शौक आ गया लोगों को लाइनों में खड़ा करके देते हैं। आपको पता है, और जिस तरह इलेक्शन के दिनों में लिस्टें बनती है ना कि इसका वोट कहाँ है, इस तरह गरीबों की लिस्टें भी पहले से बनाई जा सकती हैं कि कौन जरूरतमंद है, और एक जगह पे बैठकर ही बन जाती है। सब हो जाता है अगर करना हो। मेरे अजीज, लोगों को दिया जाए। और देखना, याद रखना, अगर रमजान में भी कोई करियाने वाले के पास खड़ा होकर कह रहा हो ना कि यार बस 2 दिन और निकालो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाता हूं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी अफ्तारियां और सियासी अफ्तारियां थोड़ी बंद कर लेनी चाहिए। फिर हमें गौर कर लेना चाहिए कि रमजान शरीफ में भी लोग गुजारिशात पेश कर रहे हैं। खुदा के बंदो, इस तफरीक से हम कब निकलेंगे कि बस हमें लोगों को खैरात ही देनी है? आप लोगों के दुखों का मदावा करें, आप तालीम को आम करें, रोजगार को आम करें, और आप लोगों की जरूरियात की किफालत करें। एक शख्स सिर्फ दे और एक आदमी को दे, लेकिन उसकी जरूरियात का ख्याल करें। इस तरह का रवैया कि मुझे 100 जगह पे देना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में एक शख्स को ज़कात लगती थी, इतने लोगों ने ज़कात दी, उसने कारोबार किया कि अगले साल को खुद ज़कात दे रहा था। लेकिन वो हम तो लोगों को इस तरह का रवैया रखते हैं कि बस ठीक है, ये काम चलता ही रहना चाहिए। तो आप अपनी तबीयत में रमजान में सखावत का मिजाज पैदा करें और अपने इर्द गिर्द ढूंढें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी शख्स को कुछ देने लगे तो जमीन पे रख के चले गए, और फिर आवाज दी, वो मैंने कुछ आपके लिए तोहफा रखा है, फलां जगह उठा लीजिएगा। तो किसी ने कहा हुजूर आपने नीचे रखा है, दे देते। फरमाने लगे लेते वक्त वो आंखें भी नीची करता, उसकी जुबान पर शुक्रिया के अल्फाज भी लड़खड़ाते हुए आते हैं, और वो मुझे मुहसिन जानकर अपने मिजाज में थोड़ा कमजोरी भी महसूस करता। तो मैं जल्दी से इसलिए आ गया हूं कि कहीं उसको नजरें ना झुकानी पड़े, अल्लाह की रिजा के लिए दिया है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, किसी गरीब की बेटी की शादी कराओ तो फिर खुद उस शादी में ना जाना, इसलिए कि वो तो फिर बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा, नजरें झुकाए फिरेगा। तुमने ताबुल कर दिया, अब घर रहो। चौथा काम जो हमने रमजान में बहुत ज्यादा करना है वो दुआएं मांगने का है। दुआ मोमिन का हथियार है। कुछ लोग कहते हैं दुआ से क्या होता है? मैंने कहा अगर रसूल रहमत दुआ मांगे ना तो अल्लाह हजरत उमर जैसे लोगों को दीन में दाखिल कर देता है। तो दुआ की ताकत का ही नहीं पता। दुआ तो हथियार है मोमिन का। दुआ से इनकलाब आ जाता है, काया पलट जाती है। दुआ करो कोई दुआ देने वाला मिले, दुआ करो कोई पिछले शहर उठकर दुआ दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई दुआओं में याद रखे, दुआएं मांगे और दूसरों के लिए ज्यादा मांगे। आपने ज्यादा गौर किया, मैं समझ गया हूं। दूसरों के लिए मांगे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगे। हदीस में फरमाया जो दुआ तुम किसी के लिए मांगते हो अल्लाह पहले तुम्हें अता फरमाता है। आप मांगेंगे तो वो तो करम होगा। अपने लिए भी मांगे पर दूसरों के लिए भी मांगे। दिल बड़ा तबीयत बड़ी बेचैन हो जाती है जब फलस्तीन के लोगों की तकलीफ होती है। हम ना खबरों में पूरे दिन रहने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज है, जो खबर चल गई उसके पीछे बोलिए। जिन इलाकों में सैलाब आया था वो सारे लोग अपने अपने घरों में सेट हो गए, कारोबार चल गए, लेकिन खबरें खत्म हो गई है ना, तो हम भी चुप कर गए। फलस्तीन की चंद दिन खबरें जरा ज्यादा थी तो हम भी जरा ज्यादा बात कर रहे थे। अब वो खबरें खत्म हो गई, जंग तो खत्म नहीं हुई, तकलीफ तो खत्म नहीं हुई। खुदा के बंदों जो जख्म लगे थे वो तो नहीं भरे। आंसू तो अपनी जगह पे हैं, दर्द तो अपनी जगह पे, लेकिन हम खामोश हैं। हमारे वही स्टेटस है, वही आना जाना, वही फुर्तियां हैं, वही खाना पीना है। हमें किसी से क्या लगे इल्ला माशा। अपने मुसलमान भाइयों का दर्द समझो, अपनी तिजोरियां भरते जाना और किसी का ख्याल ही ना करना, इसका माना यह है कि दिल सख्त हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा तो हुजूर दिल सख्त हो गया। फरमाया कोई यतीम मिले ना, उसके सर पे हाथ फेरा कर अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर देगा। इन पर देखें, मैं बात समेटने लगा हूं। पांचवा काम जो रमजान शरीफ में हमने करना है वो है मुहासबा।
हमें सोचने का वक्त मिलेगा, हम रोजे से होंगे, बैठने का मौका। हमारे सूफिया एक मुराकबा कराते हैं। अब तो खैर हम जो सूफिया की जमात है हमें भी तर्ज का नहीं पता कि सूफिया का असल तरीका क्या है। ना हमारे यहाँ वज़ाइफ पढ़ने का वो रिवाज है, ना अकेले में बैठ के कुछ देर मुराकबे की वो कैफियत है, ना दुआ और मुनाजात और वो अकेले की इबादत है, तन्हाई की, दूसरों से कट के अल्लाह को याद थोड़ी देर के लिए करना, लेकिन तन्हाई में। हमारे यहाँ जो चीज़ भी होती है वो चूँकि ज़्यादातर इज्तिमाई होती है, तो इज्तिमाई चीज़ें ज़्यादातर फेसबुक पर, तो फिर वो उसकी वो कैफियत नहीं रहती, वो ज़ौक़ नहीं रहता। आप रमज़ानों में थोड़ा अकेले बैठे, थोड़ा तन्हाई में वक्त गुजारे। गारे हिरा में तन्हा बैठना भी तो नबी करीम का तरीका है। गारे सौर में 3 दिन सबसे कट के इस्लाम रहबानियत की नफी करता है, लेकिन कुछ देर के लिए खलवत करना, अकेले में बैठना, थोड़ी देर अपने आप से गुफ्तगू करना, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को। आप ही हो या मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। जमाना बीत गया, हमने अपने आप से बात ही नहीं की। अपने आप को भी तो कटारे में लाना है ना, अपने आप से भी तो कई सवाल पूछने हैं ना, अपने आप से भी तो बात करनी है ना कि मियाँ तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी हैं और तेरी मेहनत कितनी है, हिसाब दे। अल्लाह के इनाम कितने हैं और जवाब में तेरा शुक्र कितना, हिसाब दे। अल्लाह के एक बंदे थे, उन पर नेक थे, इबादत गुजार थे, इनाम बरसने लगे तो एक दिन रो पड़े और तड़प के कहने लगे, अल्लाह इन पर इनाम बहुत होने लगे हैं, मेरी कदर बहुत होने लगी है, मेरे आने पर गोया नारे बहुत लगने लगे, लोग मुझे बहुत जानने लगे हैं, मुझ पर करम करना, कहीं मेरी सारी नेकियों का मुझे दुनिया में अजर न दे देना। ऐसा ना हो सुबह कयामत मेरा नामा माल खाली रह जाए। करम नवाजी फरमा, कुछ वहां के लिए भी मुझे अता करना। मेरे अजीज, रमजान आपको मौका देगा कुछ तन्हाई में बैठे अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो। सहरी के लिए जब उठे ना तो 20 मिनट पहले उठे, फिर वुजू बनाए, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़े। बड़ी पसंद है रसूल पाक को तहज्जुद की नमाज, हुजूर बड़े ज़ौक़ से उठते। आप अकेले हो, अपने घर में पढ़ें। उस इबादत के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर अपने लिए, उम्मत के लिए कशकोले तलब दराज करें, लेकिन अपना मुहासबा करें। सारी ज़िंदगी दूसरों का हिसाब किया है। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत नेक आदमी से कहा, बहुत नेक आदमी से, क्या आप बताइए बस्ती में सबसे गुनाहगार कौन है? तो उस नेक आदमी ने अपने गले में रस्सी डाली और हजरत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज करने लगे, हुजूर कुछ लोगों का मुझे ख्याल था कि शायद इनमें कुछ गलतियां हों, पर उनकी गलतियों का मुझे सिर्फ शक था, अपनी गलतियों का तो मुझे यकीन है ना, वो तो मुझे तय है ना मैंने की है, तो मैं हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार। तो आप फरमाने लगे, तुम्हें दर्जा क्यों मिला? ये तुम्हारी जो आजिज़ी है इसी ने तुम्हें दर्जा अता की। अपने आप से तो मुद्दतों हो गए, हमने अपने आप से कभी बात ही नहीं की। हम तो दूसरों की तरबियत और इस्लाह कर रहे हैं, अपने आप से तो कभी गुफ्तगू ही नहीं की। कुछ वक्त अपने आप को दें, अपने साथ कलाम करें। बुजुर्गों के तरीके थे कि वो कुछ लम्हे रात को तन्हाई करते, अल्लाह के हुजूर वक्त बिताते। हम सारे अब मजालिस के, महाफिल के, आने जाने के, उठने बैठने के कायल हैं, अकेले आए हैं दुनिया में। जब जाना है तो फिर अकेले जाना है। कब्र से लेकर कयामत के कायम होने तक तन्हा रहना है, तो थोड़ी सी तन्हाई थोड़ी देर के लिए करना शुरू करें ना अल्लाह की बारगाह। तो ये 5 बातें आपकी खिदमत में मैंने रमज़ान के ताल्लुक से अर्ज़ की हैं। एक गुजारिश मेरी आपसे और है, बात ख़त्म करते हुए, यकीनन आप तवज्जो करेंगे। अपनी ज़िंदगी से तनकीद बहुत ज़्यादा निकाल दें। हमारी ना कुछ आंखें ज़्यादा खुल गई हैं, जो ज़्यादा ही तनकीद, अल्लाह के बंदे हैं इस कदर ज़्यादा मैं तनकीद सुनने लगा। इस्लाह करना, मैं अभी हरम शरीफ गया था, मैंने वापस आके भी दोस्तों से कहा, वहाँ भी दोस्त कहते हैं देखो वो क्या कर रहा है। तो मैंने कहा यार तेरा क्या ख्याल है, जो बड़े नकम्मे थे वो बुला लिए गए, यहाँ तो जो बड़े मकबूल होते हैं उनको हाजिरी के मौके मिलते हैं। हर जगह गलतियाँ ही ढूंढते हो, सिर्फ गुफ्तगू के मौज़ूआत ही तलाश करते हो। अल्लाह के बंदों की खूबियाँ भी तो देखो। कम से कम एक माह ऐसा ज़रूर गुजारें जिसमें सिर्फ खैर तलाश करें, अच्छाइयाँ तलाश करें, थोड़ी देर के लिए सरफ नजर करें लोगों की जो अमाल की गलतियां हैं। अकीदा तो चलो एक बुनियादी चीज है, तो मैं अर्ज करूंगा तनकीद वाली जिंदगी और हर वक्त कमजोरियां डिस्कस करना। हर वक्त आपको पता है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर की तबीयत के मुताबिक अगर कभी खाना ना होता तो छोड़ देते, लेकिन कभी उसमें से नुक्स, तो जो रमजान में भी झगड़े ही करे और नुक्स ही बयान करे और हर जगह के बयान करे, तो उसने फलसफा क्या समझा?
تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔